صلی علی محمد گل از رختا مختا نازک بدنی را بدنی را بدنی را بدنی را بلبل زتوں آموختا شیری سخنی را سخنی را سخنی را سخنی را ہر کس کے لبے لال ترا دیدہ بدل گفت ہر کس کے لبے دیدہ بدل گفت حقا کے چے خوشکندائے عقیقے یمنی را یمنی را یمنی را یمنی را حقا کے چے خوشکندائے عقیقے یمنی را یمنی را یمنی را یمنی را بلبل زتوں آموختا شیری سخنی را سخنی را سخنی را سخنی را حیات ازل دوختا بر قامت زیبا در قد توئی جامعے سروے چمنی را چمنی را چمنی را چمنی را بلبل زتوں آموختا شیری سخنی را سخنی را سخنی را سخنی را در عشق تو دلدان شکست آستب الفت تو جام رسا نیند ویسے کرنی را کرنی را کرنی را کرنی را بلبل زتوں آموختا شیری سخنی را سخنی را سخنی را سخنی را جامیے بیچارہ رسا نیند سلامے از جامیے بیچارہ رسا نیند سلامے بر درگاہیں درباریں بر درگاہیں درباریں رسول مدنی را مدنی را مدنی را مدنی را گل از رختا مختا نازک بدنی را بدنی را بدنی را بدنی را
سبحان اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. نیوز کی اسپیشل افطار ٹرانسمیشن جس کا نام ہے پیغام رمضان میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں. میں ہوں ہنا سلمان. ویوز آج جو ہے 24واں روزہ ہے اور جیسے سی رمضان جو ہے وہ رخصت ہوتا جا رہا ہے, عید جو ہے وہ قریب آتی جا رہی ہے, مگر ایک آج ہم امپورٹنٹ ٹاپک کے اوپر بات کریں گے, ایک بہت گہرے موضوع پہ بات کریں گے. وہ موضوع یہ ہے کہ بچوں کی تربیت اور والدین کی ذمہ داری یہ کیسے آپس میں کہتے ہیں ریسیپروکل ہو کے چل سکتی ہے, کیسے بچوں کی ہم لوگ ذمہ داری اور ان کی کفالت پوری کر سکتے ہیں, قرآن و سنت کی روشنی پہ اس پہ کیا حکم ہے, اور بچوں کی شخصیت کی تشکیل دینا, ان کی اخلاقی بنیادوں کی تعمیر کرنا بھی والدین کی بہت امپورٹنٹ ذمہ داری ہوتی ہے. تو یہ آپس میں رہ کر یہ دونوں ہم کیسے بخوبی نبھا سکتے ہیں. سوشل میڈیا کا دور ہے, سوشل میڈیا نے ایک دم سے کہتے ہیں نا کہ پروان چڑھ گیا ہوا ہے, مگر بچوں کو ہم سوشل میڈیا سے کیسے دور رکھ کے ان کی تربیت پہ فوکس کر سکتے ہیں, ان کی نشو و نما پہ فوکس کر سکتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ اس کا ہے کہ اس کا تعلق ہماری زندگیوں سے سب سے قیمتی ہمارا احساسہ ہوتا ہے. والدین اور بچے آپس میں جو بانڈ ہے اس بانڈ کو ہم آگے لے کے کیسے جا سکتے ہیں, اس بانڈ کی اخلاقی سماجی ویلیوز کیا ہیں, سوشل ویلیوز کیا ہیں, اور آگے بچے جو ہیں بڑے ہو کر کیسے ایک بہتر انسان بن سکتے ہیں. آج ہم سب چیزوں کے بارے میں بات کریں گے. اگر ہم گیسٹ لسٹ کے بارے میں بات کریں تو میں سب سے پہلے شکریہ ادا کروں گی شبانہ عباس صاحبہ آپ کا. ایک خوبصورت نعت آپ نے پڑھی اور محفل میں کہتے ہیں سما بن گیا. اور اس کے آپ کا بہت شکریہ, آپ نے بلایا اور آپ کو رمضان بھی مبارک. تھینک یو سو مچ. بالکل ایسا ہی ہے. اور ہماری گیسٹ میں ہمارے ساتھ ہمیں جوائن کریں گے فصیح شاہ صاحب, جو کہ گہری نظر ڈالیں گے بچوں کی تربیت کے حوالے سے, سوشل ویلیوز کے حوالے سے, اور وہ اپنا ایکسپیرینس بھی شیئر کریں گے کہ انہوں نے اپنے بچوں کی کفالت اور تربیت کیسے دی. اور ان کے ساتھ ساتھ ہمارے ساتھ آج موجود ہیں ڈاکٹر صلاح الدین, جو مذہبی اسکالر ہیں, جن کو میں ویلکم کہتی ہوں. وہ ہمیں بتائیں گے کہ اسلام میں بچوں کی تربیت پہ کیا حکم ہے, والدین کی کیا امپورٹنٹ ذمہ داریاں ہیں, اور قرآن و سنت کی روشنی میں کیا احکامات جاری کیے ہوئے ہیں, اور بچوں کی تربیت جو ہے اور والدین کی محبت اور شفقت کیسے ریسپریکیٹ کر سکتی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں جوائن کریں گے شیخ روہیل, جو کہ سی او ہیں سکون, ایک ان کا برانڈ ہے. وہ بتائیں گے کہ وہ انٹرپرینیور ہیں, انہوں نے انٹرپرینیورشپ کیسے کی اور اس برانڈ کو کیسے آگے لے کے جائے, اور جو سکون ہے ایک ایموشن ہے وہ کیسے بزنس میں تبدیل ہوا, اس کی جو پروڈکٹس ہیں وہ کیسے سکون دے سکتی ہیں, سکون کا باعث بن سکتی ہیں, بچوں کو کیسے کہتے ہیں کہ انزائٹی ان میں کم کر سکتی ہیں, بڑوں کی انزائٹی کیسے کم کر سکتی ہیں. تو ہم ان سب چیزوں کے بارے میں آج بات کریں گے. اور اس کے بعد اس سے پہلے ہم جائیں گے اپنے تلو کے کچن میں. تلو کے کچن میں ہماری جو شیف ثنا ہے وہ مزیدار قسم کی ریسیپیز جو ہیں آج بنا رہی ہیں اسپیشلی, تو میں رخ کروں گی ثنا کا. جی ثنا, تلو کے کچن میں کون سی ریسیپی آج بن رہی ہے اور آج آپ ہمارے لیے کیا ڈفرینٹ لے کر آئی ہیں؟ السلام علیکم ہنا, کیسی ہیں آپ؟ وعلیکم السلام, میں ٹھیک, آپ بتائیں. میں بھی ٹھیک ہوں. ہنا آج میں بنا رہی ہوں چکن اسٹرپس اور چکن پاپس. چکن اسٹرپس اور چکن پاپس. اچھا, آئی تھنک بچوں کا آج ٹاپک بھی ہے, اور یہ بچوں کے لیے اسپیشل ان کے لیے کہتے ہیں نا کہ مزیدار قسم کی ریسیپی ہوتی ہے. پلیز آپ بتائیں. جی ہنا, چکن میں نے لیے بون لیس لیے, اس کو آپ پاپس میں کٹنگ کر لیں, چھوٹے کیوبس میں کر لیں, ٹھیک ہے. اس کو ٹینڈر کرنے کا طریقہ ہے کہ آپ نے اس کو ملک میں رکھنا, ڈپ کر کے. ٹھیک ہے ثنا, آئی تھنک آپ اس کو ذرا سائڈ پہ کریں, بول کو سائڈ پہ کریں, تاکہ کیمرہ جو ہے وہ دکھا سکے کہ آپ نے کس طریقے سے جو ہے اس کو میرینیٹ کرنا ہے, کیونکہ ویورز دیکھ رہے ہیں, ساتھ ساتھ نوٹ ڈاؤن بھی کر رہے ہوں گے. اور ریسیپیز جو ہوتی ہیں ہمارے لیے بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے, کیونکہ افطار کا دسترخوان تبھی سجتا ہے جب ریسیپی بڑی زبردست بنی ہو. ہاں جی, تو یہ میرینیٹ کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے دودھ میں اس کو ڈپ کرنا ہے. ٹھیک ہے. جنجر گارلک پیسٹ ہے, آپ پاؤڈر بھی یوز کر سکتے ہیں, پیسٹ بھی یوز کر سکتے ہیں. اس میں آپ نے سالٹ, تھوڑی سی چینی اور بلیک پیپر, اس کو 5 گھنٹے کے, اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا چکن بہت زیادہ ٹینڈر ہو تو آپ اس کو 5 گھنٹے کے لیے رکھ دیں, اور اگر آپ نے جلدی کرنا ہے تو 2 گھنٹے کا سٹے بہت ہے. ٹھیک ہے. اب یہ میں نے اس کو کر کے کافی ٹائم سے رکھا ہوا ہے, یہ ہمارا جو چکن ہے یہ ٹینڈر ہو چکا ہے. اس میں آپ نے کیا کیا ایڈ کیا؟ اس پہ میں نے جنجر گارلک پیسٹ ہے, ٹھیک ہے, سالٹ ہے, پیپر ہے اور ملک ہے. آپ تھوڑا سا سرکہ بھی اس میں ایڈ کر سکتے ہیں, لیمن جوس بھی فلیور کے لیے. اور جو اس کی کوٹنگ میں نے ریڈی کیا, میدے کی جو کوانٹٹی ہے وہ ہماری زیادہ ہوگی, کارن فلور کی کوانٹٹی ہماری کم ہوگی. اس میں بھی ہمارا جائے گا جنجر گارلک پاؤڈر جائے گا, چلی فلیکس جائیں گی, اور آپ تھوڑا اوریگینو کر لیں. ٹھیک ہے. اب آپ یہ دیکھیں, میں نے اس کو میتھڈ بھی ساتھ سے بتائیں کہ کس طرح آپ کوٹ کریں گی اور کس طرح پھر اس کو ہم فرائی کریں گے, ڈیپ فرائی کریں گے, شالو فرائی کریں گے. نہیں ڈیپ فرائی کریں گے. ٹھیک ہے. یہ ڈیپ فرائی میں اس کے کرمز بنتے ہیں. یہ کر کے آپ اپنے فنگر ٹپ سے اس کے کرمز بنائیں گے. پھر ٹھنڈا پانی آپ نے لینا ہے, اس میں ڈپ کر کے پھر یہ آپ واپس سے میتھڈ جی یوز کریں گے. ٹھیک ہے. یہ دیکھیں کرمز بن رہے ہیں.
ठीक है। अच्छा, बाइंड कर दिया आपने हाँ सारा जी। क्रम्स के साथ, ठीक अब है। इसको ही ना थोड़े टाइम के लिए हम स्टे देंगे, क्योंकि क्रम्स जो हैं वो ये देखिए, ये जैसे ही क्रम्स बने हुए हैं ना, हम साथ ही नहीं डाल देंगे, आप कम से कम इसको 10 मिनट का स्टे देंगे, फिर आप इसको डीप फ्राई करेंगे। और इसी तरह अगर आपने चिकन स्ट्रिप्स बनाने हैं तो आप बोनलेस लें, बोनलेस के स्ट्रिप्स कर लें। स्ट्रिप्स की भी रेसिपी सेम यही है, लेकिन उसको टेंडर करने के लिए आपको ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा। मिल्क उसमें ऐड करें, विनेगर करें कि वो चिकन गल भी जाएगा और मिल्क से आपका जो वो चिकन होगा ना वो टेंडर होगा। ठीक है, आप इसको करें मैरिनेट, आपने जो करा है आप इसको एक एक क्यूब बनाएं और फिर फ्राई करें। आप डिश आउट जब करेंगे हम वापस आपके पास आएंगे, सॉस भी पूछेंगे, आपने सॉस कौन सी बनानी है इसके साथ। तो मैं रुख करूंगी अपने गेस्ट की तरफ, मजहबी स्कॉलर्स हमारे साथ डॉक्टर सलाउद्दीन बैठे हुए। डॉक्टर सलाउद्दीन, ये बताइएगा, आज हमारा टॉपिक है बच्चों की तरबियत पे और वालिदैन के क्या फ़राइज़ हैं, तो कुरान और सुन्नत की रोशनी में सबसे पहले क्या हुक्म है? बहुत शुक्रिया, बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपने चूज़ किया है, आप और आपकी पूरी टीम की जो काविश हैं, अल्लाह कबूल फरमाए रमज़ान के इस बाबरकत महीने में। गुजारिश इस हवाले से ये है कि बच्चे की तरबियत के पहले उसके जो वालिदैन हैं उनकी तरबियत का जो मरहला है वो नहायत अहम है। कुरान करीम के अंदर अल्लाह तबारक व तआला सूरह तहरीम के अंदर ये बात फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलिकुम नारा, ऐ ईमान वालों अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नुम की आग से बचा लो। वक़ूदुहन्नास वल हिजारा अलैहा मलाइकतुन ग़िलाज़ुन शिदाद ला यासूनल्लाह मा अमरहुम व यफ़अलूना मा युमरून, कि वहाँ पे अल्लाह तबारक व तआला ने उसका ईंधन जो बनाया है वो इंसान, जिन और पत्थर बनाए, उसके अलावा उसका कोई ईंधन नहीं है जिससे उसको भड़काया जाएगा। और उसके ऊपर फरिश्तों की ड्यूटी लगाई है जो सुनते भी नहीं, देखते भी नहीं, और उसका पर्पस यानी आप सेंसिटिविटी महसूस कीजिए कि पर्पस ये है कि देखेगा तो रहम आएगा, सुनेगा तो रहम आएगा, ना देखेगा ना सुनेगा तो ना रहम करेगा, और ला यासूनल्लाह मा अमरहुम, और अल्लाह के हुक्म की नाफरमानी भी वो नहीं करेगा। अब इस एक आयत के अंदर कई पहलू अल्लाह तबारक व तआला ने तज़किरा किए और उसमें यही बात समझ आती है, सामने आती है कि बतौर वालिदैन सबसे पहले जो जिम्मेदारी बनती है वो वालिदैन की बनती है कि इन्होंने अपने आप को और अपने बच्चों को सबसे पहले रिस्पॉन्सिबल इस बात का करना है कि जहन्नुम से बचना है। अब जहन्नुम से बचने के लिए दीन इस्लाम हमें ये बताता है कि सबसे पहले तो ईमान है, दीन है। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बच्चों की तरबियत के हवाले से ये बात की है कि जब बच्चा बोलने के मरहले में आता है तो उसे सबसे पहले लफ्ज़ अल्लाह सिखाना है, उसे अल्लाह की पहचान देनी है, अल्लाह की तरफ उसे राग़िब करना है, उसके जहन के अंदर वो तसव्वुर तख़य्युल बिठाना है कि वो मालिक है। अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अहले बैत में से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचाज़ाद भाई हैं, वो फरमाते हैं कि मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ था, आपकी पुश्त मुबारक के साथ सवारी पे पीछे बैठा हुआ हूँ, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे मुखातिब करते हैं, मुझे कहते हैं कि एक बात याद रखना, फिर थोड़ा वक्फा देते हैं, इंटरेस्ट पूरा डेवलप हो जाता है, पूरा फोकस आ जाता है कि क्या कहना चाहते हैं। तो फरमाते हैं अल्लाह तबारक व तआला, बच्चे याद रखें, अगर अल्लाह तबारक व तआला तुझे कोई चीज़ देना ना चाहे और पूरी कायनात मिल जाए, उसकी सारी ताकतें मिल जाए तुझे वो चीज़ देने के लिए, तो तुझे दुनिया की कोई ताकत वो चीज़ अता नहीं कर सकती। और सिमिलरली इसी तरह ये बात याद रखना, अगर तू तेरे ऊपर आने से कोई रहमत, कोई बरकत की कोई चीज कोई रोकना चाहे, सारी दुनिया मिल जाए, वो अगर अल्लाह तुझे देना चाहता है तो कोई चीज उसे रोक नहीं सकती है। तो ये जो तसव्वुर अल्लाह का है, अल्लाह की कुव्वतों का है, अल्लाह की अताओं का, अल्लाह की रहमतों का, उसकी करम नवाजियों का, वो इस अंदाज में अपने बच्चों के जहनों के अंदर बिठाना है। लेकिन ये तसव्वुर तब बिठाया जाएगा जब पहले पेरेंट्स का तसव्वुर क्लियर होगा, जब खानदान का अपना तसव्वुर क्लियर होगा, क्योंकि बच्चा तो आया है एक इनोसेंट है, एक स्लेट ब्लैंक है और उसकी मेमोरी अभी डेवलप नहीं हुई है उस तरह से, उसके ऊपर जो चीज नक्श की जाएगी उसने वही चीज लेके चलना है। अगर पेरेंट्स का अपना इत्काद नहीं है अल्लाह पर, अगर ईमान उनका नहीं है, अगर अल्लाह तबारक व तआला के बारे में वो शकूक व शबहात का शिकार है, वो अल्लाह को रज़्ज़ाक नहीं समझते, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हवाले से भी ये बात कही थी कि एक वक्त ऐसा आना है कि इंसान इस बात की फिक्र ही नहीं करेगा कि वो हलाल कमा रहा है हराम कमा रहा है। हलाल और हराम का भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट है, बड़ा लीडिंग रोल है इंसान के करैक्टर के अंदर, और अल्लाह तबारक व तआला ने इस हवाले से भी ये बात बड़ी वाज़ेह तौर पे इरशाद फरमाई है। तो यहाँ पे यही बात है कि अगर बच्चों की तरबियत अच्छी करनी है, हम ये चाहते हैं कि वो बच्चे मुल्क के एक अच्छा मुस्तकबिल बने, वो हम ये चाहते हैं कि वो बच्चे जो हैं वो हमारी आखिरत और निजात का सबब बने, हमारी आंखों की ठंडक बने, तो सबसे पहले वालिदैन
वालिदैन को अपने रवैये पर, अपनी पेरेंटिंग पॉलिसीज पर दोबारा एक तरह से उसे देखना पड़ेगा कि उनकी तरजीहात में शामिल क्या है। क्या सिर्फ मटेरियलिस्टिक बेसिस के ऊपर वो सिर्फ इसको लेके चलना चाहते हैं, क्या वो ये समझते हैं कि ये बच्चा उनकी अपनी वो जो है सिर्फ उनकी अपने खानदान का एक हिस्सा है, या सोसाइटी का भी हिस्सा है, या इस्लाम का भी हिस्सा है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हवाले से फरमाया कि बच्चे जो हैं ये वालिदैन के पास एक अमानत है, और अल्लाह तबारक व तआला जब किसी बच्चे को पैदा करता है तो उसे फितरत इस्लाम पे पैदा करता है। अहादीस के अंदर आता है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक बंदा आया, उसने आके कहा, एक सहाबी रसूल आते हैं, आके कहते हैं अल्लाह के रसूल मैं ना अपने बच्चे की तरबियत करना चाहता हूं, तो मुझे कुछ प्रिंसिपल्स, कुछ उसूल, कुछ अखलाकियात वो बताएं, मैं किस अंदाज में करूं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उससे पूछते हैं तेरे बच्चे की एज क्या है, उम्र कितनी है? कहने लगे 1 साल है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तूने लेट कर दिया। अच्छा, अब इमेजिन कीजिए कि 1 साल का बच्चा है और रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो साहिब इल्हाम है, साहिब शरीयत है, वो फरमा रहे हैं कि तूने लेट कर दिया। अब लेट कैसे हुआ? लेट ये है कि जब बच्चा जनीन है, मां के पेट में है, उसके अंदर जब रूह फूंक दी गई है तो पेरेंटिंग उसी वक्त शुरू हो जाती है। उसी वक्त अपने तखय्युल को, अपनी आदत को, अपने मामलात को, अपनी सोच और फिक्र को वो साथ साथ डेवलप हो रहा है बच्चे के अंदर, वो ऑटोमेटिकली जा रहा है, वो असर पजीरी हो रही है। और आप अगर मेडिकल जो एक्सपर्ट्स हैं उनसे मिलते हैं, साइकोलॉजिकल जो एक्सपर्ट्स हैं आप उनसे मिलते हैं, और बिहेवियर साइंस जो है आप उसको उसके बारे में उनसे सवाल करते हैं, तो वो ये कहते हैं कि बच्चे मदर अपने जब वो फिटस उसके है बच्चा हो, और बिल्कुल अभी इम्मेच्योर है, अभी पेट के अंदर है, मामलात हैं, तो उसके ऊपर जो साइकोलॉजिकल प्रेशर्स होते हैं या साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर आता है या वो रिलैक्स है, तो जो भी होता है वो पर्सनैलिटी बच्चे के अंदर ऑटोमेटिकली इफेक्ट करती है, वो आ जाती है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आप देखिए 1450 साल पहले अप्रोक्सीमेट रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरबियत का जो अंदाज है वो बता रहा है कि ये उसी वक्त शुरू करना है, यानी बाबूजू रहा जाए, अल्लाह के साथ ताल्लुक बनाया जाए, कुरान करीम की तिलावत की जाए, अपने आप को पाक साफ रखने की जुस्तजू उसके अंदर लगा जाए, और ये सोचा जाए कि पॉजिटिविटी सोसाइटी के अंदर कैसे लेके चलनी है। और उसके अलावा सिर्फ मदर का नहीं है, बल्कि हमारे यहाँ जो ज्वाइंट फैमिली सिस्टम है या हम इंडिविजुअल रहते हैं, तो सोशल मीडिया एक पूरा आपका बिहेवियर सेट करता है, टेलीविजन जो है ये आपके बिहेवियर को सेट करते हैं, आपका कुतब का मुताला जो है, आपकी जो सिलेक्शन ऑफ जो आप करते हैं अपनी किताबों की, नॉवेल्स की, जो भी है, वो डिसाइड करता है कि आपकी साइकी किस तरह की है, आपके बच्चे का बिहेवियर कैसा होगा, ये आगे सोसाइटी के अंदर कितना बेनिफिट जो है और कितना पॉजिटिव रोल प्ले करेगा, और ये कितना हार्मफुल हो सकता है अगर आप नेगेटिविटी प्रोड्यूस कर रहे हैं और उसके अंदर इंजेक्ट किए जा रहे हैं। तो ये जो चीजें हैं सारी इन चीजों को सम अप किया जाए तो बात फिर वहीं आती है कि बीइंग अ मुस्लिम, अगर हमने इस्लाम कबूल किया है, हमारा ताल्लुक रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ है, हमारा ताल्लुक अहले बैत के साथ है, हमारा ताल्लुक सहाबा इकराम के साथ है, तो हमें उन्हीं फुटप्रिंट्स के ऊपर चलना पड़ेगा जो बताते हैं कि जब हसन हुसैन छोटी उम्र के हैं, रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गोद मुबारक के अंदर है, एक सदके की खजूरें लाई जाती हैं, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये बाबरकत नवासा उसमें से एक खजूर पकड़ते हैं, अपने मुंह में डाल देते हैं, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उंगली डाल के फौरन बाहर निकाल देते, तो कहते कख कख इसे बाहर निकालो, थूको इसके। अब हमें ये कहते हम कहें बच्चा है, खैर है, क्या हो गया है, इसमें क्या मसला है, क्या मजाक है, चल कोई नहीं मैं खजूर ले दूंगा, क्यों डांट रहा है, बच्चे के ऊपर बैड इंपैक्ट पड़ेगा। लेकिन नहीं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जैसा उस्ताद हम समझते हैं कायनात में ना कोई आया ना कोई आ सकता है। और बीइंग अ पेरेंट, वो भी आप मुलाहजा कीजिए कि आपका अपना है, लखते जिगर, और फरमा रहे हैं कि जैसी मोहब्बत मुझे इससे है कोई किसी से नहीं है, बेशक, ठीक है। और इतनी मोहब्बत के बावजूद आपने उसका जो साइकोलॉजिकल बिहेवियर है और जो हमने आज सेट कर रखे हैं कि नहीं ये चीज है, ये चीज है, ये चीज है, और हमारे यहाँ तो मामलात इतने खराब हो गए हैं कि हम दादा दादी, नाना और नानी को भी हम नहीं कहने देते कि ये पेरेंटिंग में मरहले में हमारे साथ शामिल हो जाएं, बिल्कुल। और हम उन्हें कहते हैं कि नहीं आपको क्या पता है, ये बच्चे की जो हैबिट्स हैं, बच्चे की जो नफ्सियात हैं, उसके ऊपर ये प्रेशर बिल्ड कर देगा, आपका इस तरह चीखना, आपका कहना, आपका बताना। लेकिन हमने देखा अपनी जो पिछली पीढ़ी है उसको और उससे पहले लोगों को कि दादे का आखिरी दोस्त करते थे, बिल्कुल, दादे का आखिरी दोस्त उसका पोता है, और बड़ी जबरदस्त आपने बात की है। सोशली आप वैल्यूज के बारे में बता रहे हैं कि बच्चे की पेरेंटिंग में जो पूरी जॉइंट फैमिली सिस्टम थी वो कैसे कहते पेश होता था। छोटी सी ब्रेक में वापस आते हैं, बातों का सिलसिला जारी है। आप देख रहे हैं पैगाम रमजान।
پیغام رمضان میں آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں. ہمارے کچن میں پکوان تیار ہو رہا ہے اور ہم آج ایک بہت امپورٹنٹ ٹاپک پہ ڈسکشن کر رہے ہیں. وہ ٹاپک یہ ہے کہ بچوں کی تربیت کیسے کرنی ہے اور والدین کے کیا اصول ہیں, کیا ذمہ داریاں ہیں جن کو لے کے انہوں نے آگے ایک بچے کو بہتر انسان بنانا ہے. تو ہم لوگ کریں گے ڈاکٹر صلاح الدین صاحب آپ کا. ڈاکٹر صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ سوشلی تو آپ نے بتایا کہ بچوں کی تربیت کیسے کرنی چاہیے, قرآن و سنت کی روشنی میں کیا ہے کام ہے, مگر جو عبادات ہیں, عبادی جو تعلیمی ہے, اسلامی تعلیم ہے, جیسے نماز ہے, روزہ ہے, کس عمر سے سکھانا چاہیے؟ کیونکہ جب بچے میچور ہو جاتے ہیں تو ان کو یہ سکھانا بہت مشکل ہو جاتا ہے کہ روزے رکھنے ہیں, نماز پابندی سے پڑھنی ہے. اس پر آپ کیا کہیں گے؟ بہت شکریہ آپ کا. سب سے پہلی بات تو یہی ہے کہ جیسے ہم نے پہلی گفتگو میں تذکرہ کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی سے جس کا بیٹا 1 سال کا تھا تو اس سے کہا کہ تو لیٹ ہے. تو یہاں پہ یہ سمجھنے کی بات یہ ہے کہ دوسری بات جو میں بڑا کلیئر ہوں اس حوالے سے, اور وہ یہ ہے کہ بچے جو فالو کرتے ہیں سب سے پہلا رول ماڈل بچوں کے لیے جو ہوتا ہے نا اس کے پیرنٹس ہوتا ہے. وہ گھر کا انوائرمنٹ دیکھتے ہیں. اگر گھر کے اندر باوضو ہوا جاتا ہے, نماز پڑھی جاتی ہے, مرد سنتیں نوافل گھر پہ ادا کرتے ہیں, خواتین جو ہیں گھر پہ نمازوں کی پابندی کا خیال رکھتی ہیں, تو لامحالہ بچہ جس مرضی پوزیشن میں کرالنگ کر رہا ہے, چلنے پھرنے کی ایج میں آ گیا ہے یا تھوڑا سا بڑا ہو گیا ہے, وہ جائے نماز بھی آپ کے آگے پیچھے آپ کے آس پاس رہے گا. جو آپ کرتے ہیں بچہ وہی فالو کرتا ہے. سب سے پہلا پیرنٹنگ کے حوالے سے یہ بات بڑی ذہن میں رکھنی ہے, کیونکہ جب ذہن میچور ہو جاتے ہیں تو پھر چیزیں لامحالہ طور پہ اور طرح سے ہو جاتی ہیں. دنیا ہماری تھوڑی سی گلیمرائز ہے. جب یہ گلیمرائز ہے تو پھر بچہ جب اسکول میں آ جاتا ہے تو پھر وہ ٹیچر کو بھی دشمن سمجھ رہا ہے, کیونکہ وہ بھی کہیں نہ کہیں اسے تھوڑا سا سٹریس, کیونکہ اسے بھی رزلٹ چاہیے, اسے بھی آؤٹ پٹ چاہیے, اس نے بھی اپنی اسکول کے ایڈمنسٹریشن کو اور پیرنٹس کو بھی سیٹسفائی رکھنا ہے. اسی طرح پیرنٹس یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی اسکول میں چلا گیا, ہم نے فیس پے کر دی, ہم نے سہولیات دے دی, ڈرائیور دے دیا, چیزیں دے دی, تو اب اسکول سے ایجوکیٹ ہو جائے گا تو وہاں پہ ہوگا. اصل میں پھر یہ بنیادی جو چیز ہے یہ پیچھے رہ جاتی ہے. جب گھر پہ ماحول اسلامی ہوگا, دینی ماحول ہوگا, نمازوں کی پابندی والا ماحول ہوگا, تلاوت کلام پاک کا ماحول ہوگا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تقدیس کی باتیں ہوں گی, اہل بیت کے تذکرے ہوں گے, صحابہ کی قربانیوں کا تذکرہ ہوگا, تو امام غزالی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ بچے کو اپنی زندگی کے ابتدائی ایام کے اندر ہی اسے باقاعدہ طور پہ رات کو لوری کے انداز میں, کہانی کے انداز میں یہ چیزیں سکھانی ہے, یہ بتانی ہے, اور اس طرف اس کا انٹرسٹ ڈیولپ کرنا ہے. جب پریکٹیکلی بھی وہ دیکھے گا کہ یہ جو چیزیں صرف وربلی نہیں, یہ پریکٹیکلی بھی ہو رہی ہے, تو وہ آٹومیٹکلی اس کی ہیبٹس میں آتی جائے گی. جب وہ ہیبٹس اس کی بن جائیں گی تو پھر ایک وقت آئے گا 4 سال 5 سال کی ایج کے بعد, وہ پوچھے گا آپ جو کہہ رہے ہیں یہ ہماری زبان تو ہے نہیں, مدر ٹنگ تو ہے نہیں ہماری, اس کا مطلب کیا ہے؟ جب وہ مطلب پوچھے گا تو لامحالہ طور پہ وہ کنیکٹ کر رہا ہے اسلام کے ساتھ, دین کے ساتھ, اس کی روح کنیکٹ کر رہی ہے اللہ کے ساتھ. لیکن جب انفارچونیٹلی جب پیرنٹس کو بھی اس کا پتہ نہیں ہے, جب انہیں بھی نہیں پتا, جب انہیں بھی اتنا پتا ہے کہ مصیبت آئے گی تو پھر گرنا ہے, تو پھر بچہ بھی مصیبت میں ہی گرے گا, ادروائز نہیں. اور اللہ کیا کہتا ہے؟ اللہ کہتا ہے تو خوشحالی میں یاد رکھ, میں تیری اوپر تنگی آنے نہیں دوں گا, تنگی میں یاد رکھوں گا. تو یہ ایک بڑی اچھی بات ہے کہ اگر گھروں کے اندر یہ ماحول پیدا کر لیا جائے. اور بچے کے لیے نماز کی پابندی ویسے تو شریعت کہتی ہے 7 سال کی عمر سے اسے کہنا شروع کر دینا چاہیے بار بار, لیکن قرآن کریم کے اندر سورہ لقمان ہے, ہم اس کا جب مطالعہ کرتے ہیں, حکیم لقمان ہے اور یہ کوئی نبی نہیں تھے, یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایک ایسا بندہ ہے جس سے اللہ اتنا خوش ہے کہ اس کے نام کی صورت قرآن کریم کے اندر اللہ نے نازل کر دی. وہ اپنے بیٹے کو وصیت کر رہے ہیں. وصیت کا انداز کیا ہے؟ یا بنیا, اے میرے بچے. اب یہاں پیرنٹنگ کا پہلا اصول یہ ہے, آپ نے اپنے جس بھی رشتے کو مخاطب کرنا, آپ اس کی کاؤنسلنگ کرنا چاہتے ہیں, آپ اس سے آپ کا جو ریلیشن ہے آپ وہ بنا لیں. ٹھیک ہے, آپ وہ اسے بار بار ریپیٹ کریں, اسے بتائیں کہ تو میرا ہے میں تیرا ہوں. میرے بیٹے تو یا بنیا لا تشرک باللہ, اللہ کے ساتھ کسی کو شامل نہ کریں. انٹینشن اللہ کے علاوہ کہیں اور نہ ہوئے, اللہ کے ساتھ کہیں اور نہیں کنیکٹ ہونا. تو نے اللہ سب کرتا ہے, کوئی اور نہیں کرتا. اے میرے بیٹے, پھر اگلی آیت ہے, پھر کہا جا رہا ہے میرے بیٹے, پھر وہیں پہ ایک اصول یہ ہے وَلَا تُصَعِرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي, لوگوں کے ساتھ بدتمیزی سے بات نہیں کرنی ہے,
लोगों के साथ जो बिहेवियर है वो तेरा बहुत उम्दा और बड़ा अच्छा होना चाहिए। अगर तेरा बिहेवियर ओए तोए वाला है तो जवाब में तुझे वो सुनना पड़ेगा। और अल्लाह तबारक व तआला को ये बिहेवियर पसंद नहीं है। जमीन पे अकड़ के चलना, तकब्बुर की चाल चलना अल्लाह को पसंद नहीं है। और याद रख, अगर तू अकड़ता है, तकब्बुर करता है, तो तेरे पाँव की ठोकर से पहाड़ नहीं हिलने वाला, जमीन नहीं फटने वाली। जब ये चीजें नहीं होने वाली तो तुझे जरूरत क्या है? बेशक तू अल्लाह का आजिज बंदा बन के चल, अल्लाह तुझे बहुत बुलंद कर देगा। और फिर वहां पे अपने वालिदैन की जो इंपॉर्टेंस है उसी जगह पे, उसी पैराए के अंदर अल्लाह तबारक व तआला सूरह लुकमान के अंदर ये बात कह दी है कि वो माँ है जिसने तुझे पेट के अंदर पहले उठा के रखा, फिर तुझे छाती से लगा के तुझे फीड करवाया, और फिर उसके बाद उसने तुझ पे एहसान किया। अब तेरे अंदर कुव्वत आ गई, ताकत आ गई, बोलने की तमीज आ गई, तो जिन लोगों ने अल्फाज बोलने सिखाए हैं ना, जुबान की तेजी उन पे नहीं आसमानी। जिन्होंने चलना सिखाया ना, ठोकरों में उन्हें नहीं रखना। जिन्होंने अकल से सोचना, देखना, फैसला करने की लिए वो सारी आपकी काउंसलिंग की है, आपको सिखाया है, अपनी ज़हन की तेजियों तर्रारियों के अंदर उन्हें डैमेज नहीं देना। ये तेरे वालिदैन हैं, इनके साथ हुस्न सलूक करना। और फिर दुआ सिखा दी गई है 15वें पारे के अंदर के रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। अल्लाह से दुआ मांगनी, अल्लाह तू मेरे वालिदैन पे वैसे रहम कर जैसे इन्होंने बचपन में रहम किया। और यहाँ पे बड़ी इंपॉर्टेंट बात समझने की वालिदैन के लिए भी है, क्योंकि मैं नहीं समझता इस जिम्मेदारी से वो किसी भी अंदाज में बाहर निकल सकते हैं कि बच्चा अब मुंहज़ोर हो गया, बच्चा अब कॉलेज यूनिवर्सिटी की एज में चला गया, बच्चा अब टीनेजर हो गया, बच्चा अब दाढ़ी मूंछ आ गई है, बालिग हो गया, तो अब हमारी जिम्मेदारी खत्म। तो ऐसा कहीं भी नहीं है। अगर आपने अपने बच्चे का बचपन उसे हराम खिला के, बदतमीज बना के, गालियां सिखा के, मौसीकी के जरिए खराब किया है, तो ये बच्चा बड़ा होकर आपका बुढ़ापा खराब कर देगा, बर्बाद कर देगा। आपको ओल्ड एज होम में जाना पड़ेगा, आपको ये बदतमीजियां सहना पड़ेंगी, आपको टीचर्स के पास, आपको नफ्सियात दानों के पास जाना पड़ेगा, आपको उन जाके कहना पड़ेगा यार काउंसलिंग करनी है, यार मेरा बुढ़ापा अब आराम करना है, मैंने तो इसके लिए सब किया। वो नहीं देखेगा, वो कहेगा आई डोंट केयर, भाई आपने क्या किया, मेरे लिए थोड़ी किया वो आपको मिला, जो आपने किया, जो आपने बोया वो आप काट रहे हो। बिल्कुल। तो यहाँ पे पेरेंटिंग के लिए जो उसूल है वो यही है कि जब आपने बच्चे को नसीहत करनी है तो सबसे पहले उसके दिल में एक मोहब्बत का एहसास आएगा अपनायत से। आप उसे मेरा बेटा, मेरा बच्चा, मेरी जान, मेरी माँ की जान, बाप की जान, इस तरह से, इस अंदाज में उसे जब कहेंगे तो वो एक अपनायत फील करेगा। और अगर आप छोड़ देंगे तो याद रखिएगा आप अच्छे हैं ना, आपकी सोच अच्छी है अपने बच्चे के बारे में, जरूरी नहीं हर एक की बार वो सोच हो। आप अपना अच्छा क्वालिटी टाइम अपने बच्चे को दे के ईमान, दीन, तालीम, अमानतदारी, सच्चाई, वादे की पाबंदी, आंखों की हया, ये सारी चीजें नहीं सिखाएंगी तो कोई बुरा बंदा उन्हें ये सब दे के बुराइयां सिखा देगा। वो फिर मुआशरे के अंदर वो फसाद करेगा जो किसी की सोच में भी नहीं है। फिर हम यही देखते हैं, हमने देखा है सोशली बहुत से मसाइल देखे हैं, रोजाना नए केसेस आ रहे हैं इसी तरह के। और सब आपने बड़ी जबरदस्त किस्म की बात की है, जो आप बोएंगे वो आप काटेंगे। मुझे ये बताइएगा कि बच्चों की छोटी छोटी तालीमात, सच्चाई, अदल, चोरी ना करना, किसी को गलत बात ना करना, फिक्रा ना कसना, ये सारी बातें हम कैसे छोटे छोटे स्टेप से सिखा सकते हैं? क्योंकि हर तरह का माशरा है, हर तरह के बच्चे पल रहे हैं वहाँ, तो हम यहाँ कैसे रोकथाम कर सकते हैं? बहुत अच्छा सवाल किया आपने। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना एक सहाबी के घर गए और उनका छोटा बच्चा, वो सहाबी खुद कहते हैं, नरेट करते हैं खुद, कि मैं ना घर से बाहर जाने लगा खेलने के लिए बच्चों में, तो मेरी वालिदा ने मुझसे कहा बेटे इधर आओ मैं तुम्हें कुछ दूं। तो मैं वालिदा की बात सुनने के लिए उनकी तरफ आ रहा हूं तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरी मां को मुखातिब करके पूछा क्या तू वाकई उसे कुछ देने लगी है? ठीक है। उन्होंने कहा हाँ अल्लाह के रसूल मेरे पास एक खजूर है जो मैं उसे देना चाहती हूँ। तो अल्लाह के रसूल ने कहा अगर तू उसे खजूर ना देती, कुछ भी ना देती, वैसे ही बुलाती और बुला के पकड़ लेती या बिठा लेती या कुछ काम, तो तूने झूठ बोलना था। ठीक है। तो ये झूठ है। इसी तरह अमर बिन सलमा रज़ी अल्लाह ताला ने कहते हैं कि मैं छोटा बच्चा था, मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ दस्तरखान पे था, अब प्लेट के अंदर खाना मौजूद है, कहते मेरा हाथ ना घूम रहा है इधर उधर। अच्छा। मेरा हाथ कभी रसूलुल्लाह के आगे जा रहा है, कभी दरमियान में आ रहा है, कभी अपने आगे आ रहा है, कभी उधर जा रहा है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़े प्यार से कहा या बुनई, मेरे बच्चे अपने हाथ को रोक के रोक लो और समिल्लाह, अल्लाह का नाम लेके खाओ, वकुल बियमीनिक,
वकुल मिम्मा यलीक, दाएं हाथ से खाओ और अपने सामने से खाओ। बेशक, बड़ी खूबसूरत आप बात, ये बिल्कुल। पेरेंटिंग में है कि आप दस्तरखान पे बैठे हैं, आप होटलिंग के लिए गए हैं, आप जहां भी गए हैं, आप बच्चों की इस बात पे नजर रखें कि सम्मिल्लाह, अल्लाह के नाम से खाना है, कुल बियमीनिक, दाएं हाथ से खाना है। डॉक्टर साहब, हम यही से शुरू करेंगे, थोड़े से टाइम की किल्लत है और हमने अभी बात करनी है, एक ज़बरदस्त किस्म का ब्रांड है, इसका नाम है मल्टीफॉर्म। मास्टर मल्टीफॉर्म ये कहता है कि वो लेकर आया है साल की सबसे बड़ी ऑफर, और इस ऑफर में ये है कि वो ये रमज़ान असली रिप्लेसमेंट ऑफर। रिप्लेसमेंट का मतलब ये है कि आप कोई भी पुराना मेट्रेस लेके जाएं और नया मेट्रेस तब्दील करवा के वापस ले आएं। तो यानी दूसरा कोई वादा नहीं करेगा, सिर्फ ये करेगा मास्टर, और ये मास्टर ने ये वादा निभाया है। तो आप ऑनलाइन भी ये कर सकते हैं और आप किसी भी शॉप पे जाकर और आप अपने जो फॉर्म को चेंज करा सकते हैं। तो अब हम रुख करेंगे अपने किचन का, और किचन में आई थिंक हमारी रेसिपी तैयार है। जी सना? हिना ऑलमोस्ट रेडी है। बिल्कुल, मैं आपकी तरफ ही बल्कि आती हूँ और मैं रेसिपी भी देखूं जाके कि क्या बनाया है आपने। जबरदस्त किस्म का डिश आउट भी कर दिया है, साथ सॉस भी बना ली है। ये तो बड़ी क्विक रेसिपी बनाई है। जी हिना, अब ये देखिए मैंने स्ट्रिप्स भी रेडी कर ली हैं और पॉप्स भी रेडी कर लिए हैं। आपको मैं एक छोटी सी टिप देती हूँ, जब आप पॉप्स करते हैं ना, आप ले थाई बोनलेस ले लें। तो उसका ये है कि जब आपने उसको फ्राई करना है ना क्रिस्पी, आपने उसको 2 मिनट बाद निकाल लेना है। ठीक है, ठीक है, ये देखें टेंडर करने के लिए। ठीक है, ये टेंडर हो जाएगा। ठीक है, आपने जब निकाल लेना है, आपने फिर इसको डीप फ्राई कर लेना है। निकाल के 1 मिनट का स्टे देके आपने इसको डीप फ्राई मतलब आपने हल्का सा हाफ फ्राई करके निकाल के वापस आपने इसको फ्राई करना है। ठीक है, इसके साथ देखिए मैंने सॉस के साथ ये सॉस जो है हमारी, ये है हनी सॉस। अच्छा, इसकी भी रेसिपी बताएं। इसकी रेसिपी, ये क्रीम में आपने वो मायो ऐड करनी है, हनी ऐड करनी है, सराचा सॉस ऐड कर दें, थोड़ी सी शुगर, थोड़ी सी बिल्कुल, और नमक और ब्लैक पेपर, इसको मिक्स करके आप ये करें। इसको स्ट्रिप्स के साथ भी आप दे सकते हैं और पॉप्स के साथ भी। ये बहुत मजे की सॉस है। ठीक है, और हमारा जो किचन है वो तलों का किचन है, और आपने ऑटोमेटिकली इसको तलों के ऑयल में इसको फ्राई किया है, और ज़बरदस्त किस्म का ऑयल है जिसमें विटामिन ए और विटामिन डी भी है। तो हम बात कर रहे थे बच्चों की तरबियत के हवाले से, हम अपने मेन टॉपिक का भी रुख करते हैं, क्योंकि अफ्तार का वक्त जब करीब आता है तो ऑटोमेटिकली डिशेज जो है हमारी तैयार हो जाती हैं। डॉक्टर साहब, तो मैंने आपको बीच में से रोका क्योंकि मैंने किचन की तरफ जाना था। तो आप बिल्कुल बात कर रहे थे कि बच्चों को छोटी छोटी जो चीज़ें हैं हमने बच्चों को कैसे बतानी है, कैसे उसकी मेंटली नशोनुमा करनी है, फिजिकल नशोनुमा कैसे करनी है। तो आप एक वाकया बता रहे थे सर, उस वहीं से स्टार्ट करें। तो मैं ये बात गुजारिश कर रहा था कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे ये बात कही, वो छोटे बच्चे थे तो बड़ी रिस्पेक्ट से ही कहा जी, और उनसे कहा कि भाई अपने हाथ को रोक के रखो, अपने सामने से खाओ और अपने दाएं हाथ से खाओ। अब जब हम पेरेंटिंग के हवाले से चीज़ों को देखते हैं कि ये चीज़ें हमारे यहाँ कोई मैटर नहीं करती हैं, हमें इसकी कोई परवाह नहीं है। बच्चा दाएं हाथ से खा रहा है, बाएं हाथ से खा रहा है, अपना खा रहा है, वालिदा का लेके खा रहा है, दादी का लेके खा रहा है, कहाँ से खा रहा है, किस प्लेट से खा रहा है, हमें कोई इस बात की परवाह नहीं है। बल्कि ये टेबल्स मैनर, हम कहते हैं कि जब वो बच्चा अपने लड़कपन में आएगा, अपनी टीन एज स्टार्ट करेगा, तो फिर हम उसे टेबल मैनर्स और इस तरह की चीज़ें वो आहिस्ता आहिस्ता फिर स्टार्ट करेंगे, सिखाएंगे, तो वो हो जाएगा। तो ये नहीं है, ये डे फर्स्ट से चीज़ें हैं, क्योंकि खाना पीना बुनियादी ज़रूरत है इंसान की, कोई दिन बगैर खाए पिए नहीं गुजर सकता है। तो उसमें फिर एज पेरेंट देखना यह है कि इस हवाले से इस्लामी तालीमात क्या है। जब हम ये देखते हैं कि मुआशरे के अंदर हमें कमाना है, तो कमाई के लिए हमें जदीद उलूम सीखना पड़ते हैं, हमें आजकल AI टूल्स हैं वो सीखना पड़ते हैं, चैट GPT के हवाले से हमें वो चीज़ें लेना पड़ती हैं ताकि हम अच्छे से अपनी परफॉर्मेंस वेल कर सकें, बेहतर बना सकें। तो सिमिलरली हमें अपनी आखिरत भी बनानी है और वो संवारनी है। इस दुनिया में अल्लाह ने हमें दुनिया कमाने के लिए नहीं, आखिरत कमाने के लिए भेजा हुआ है। तो अगर हमारा फोकस वो नहीं रहेगा तो लामहला तौर पर गैप आएगा। उसे जनरेशन गैप कहें, उसे इंफॉर्मेशन गैप कहें, उसे किसी भी चीज का गैप कहें, तो गैप आएगा। जब गैप आ जाता है तो फिर एक नुकसान ये होता है कि एक बच्चा है, लेट्स सपोज मैं हूं अपनी टीन एज में और मैं अपने पेरेंट्स से भी नहीं सीखा हूं, मैं अपने टीचर से भी हेजिटेट हूं, मैं अपनी सोसाइटी के बड़ों से भी नहीं मिलता हूं, तो फिर मैं लामहल्ला तौर पे अपने एज फेलोज, अपने क्लास फेलोज से डिस्कस करूंगा कि मेरा ये मसला, मेरा ये मामला है, मेरी ये चीज है। तो जाहिरी बात है कि उन्हें भी पता नहीं होगा, क्योंकि माइंड मेच्योर उनका भी नहीं तो मेरा भी नहीं। बिल्कुल, बड़ी जबरदस्त आपने बात की। फिर इस बुनियाद पे वो भी खराब होंगे, मैं भी खराब होऊंगा और हमारा एक ग्रुप बनेगा, पूरा सोशल सर्कल ही खराब हो जाएगा। और जब पूरा वो ग्रुप बनेगा तो उस ग्रुप के दिल में जो आएगा वो करेगा, और फिर उनमें से किसी एक को पनिश किया जाएगा तो दूसरे रिटेलिएट करेंगे, दूसरे रेजिस्ट करेंगे, और फिर इस बुनियाद पे पेरेंट्स आके कहते हैं बच्चे अब बड़े हो गए हैं, अब हाथ से निकल रहे हैं, तो बताएं मैं क्या कर सकता हूं। तो ये मजबूरियां नहीं हैं, ये सुस्तियां हैं,
یہ نہیں کرنی ہے. پیرنٹس کی نیگلیجنس ہے. بالکل. ڈاکٹر صاحب ہم ادھر سے آئیں گے, ہم نے اپنا رخ کرنا ہے اس وقت آئی تھنک تلو کے کچن میں. ہمارے نا ثنا کے کوئی ایک آدھی چیز رہ گئی ہے, تو جی ثنا. جی ہنا میں آپ کو دوبارہ سے بتا دیتی ہوں اس کی میرینیشن. ہم نے کنور کا چکن پاؤڈر بھی ایڈ کیا تھا, وہ فلیور دیتا ہے. اس کے ساتھ آپ سویا ساس, چلی ساس بھی ایڈ کر سکتے ہیں. اور جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ میں کچن میں کام کر رہی ہوں, تو ایپرن پہ بھی داغ لگتے ہیں اور کپڑوں پہ بھی لگتے ہیں, تو کھانا بناتے ہوئے داغوں سے نہ ڈریے کیونکہ سرف ایکسل ہے نا. بالکل ایسا ہی ہے. تو ثنا زبردست قسم کی ریسیپی آپ نے بنائی ہے. افطار میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ ریسیپی کیسی لگی ہے. چھوٹی سی بریک کے بعد جانا ہے, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں پیغام رمضان. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ. ذہن مقدر حضور حق سے سلام آیا, پیام آیا, جھکاؤ نظریں بچھا کے ادب کا اعلیٰ مقام آیا. ذہن مقدر حضور حق سے سلام آیا, پیام آیا. چلا ہے الفت کے راستے پہ, یہ کون سر سے کپاتے چلا الفت کے راستے پہ. فرشتے حیرت سے تک رہے ہیں, یہ کون احترام آیا. جھکاؤ نظریں بچھا کے ادب کا مقام آیا. فضا کی صدا زاشتہ فیش گونجتی ہے, ہر ایک قربان ہو رہا ہے زباں پہ یہ کس کا نام آیا. جھکاؤ نظریں بچھا کے ادب کا اعلیٰ مقام آیا. بات سے عاشق
छोड़ आया हूँ मैं, ये बात से शिक तड़पते से छोड़ आया हूँ मैं, बुलावे के मुंतज़िर है न सुबह न शाम आया, झुकाओ नज़रें बिछा पर के अदब का आला मकाम आया। अल्लाह शबाना, बहुत खूबसूरत आवाज़ है आपकी और खूबसूरत आवाज़ में नात मुबारक आपने पढ़ी। मैं रुख करूँगी डॉक्टर साहब आपका। डॉक्टर साहब, आपने बताया कि सोशल मीडिया का दौर है और आज के दौर में टेक्नोलॉजी और सोशल मीडिया के ज़ेर असर जो बच्चे आए हुए हैं उनकी तरबियत कैसे मुतासर हो रही है और इस्लामी नुक्ता नज़र के मुताबिक क्या हल किया जा सकता है? सबसे पहली बात तो ये है इस हवाले से कि ये जो सुस्तियाँ ना उन्हें दूर करना है। ब्लेम गेम नहीं खेलना चाहिए कि उसने किया, मैं मसरूफ़ था, मैं जॉब पे था, माँ मसरूफ़ थी अपनी जगह पे। तो ये एक अपनी जो जिम्मेदारियाँ अल्लाह ने लगाई हैं ना, ये उसकी बात है बुनियादी तौर पे। तो पेरेंट्स को आपस में बच्चों को लेके, उनके करैक्टर को लेके, उनके फ्यूचर को लेके ब्लेम गेम से बाहर निकलना है। जो ख़राब हो चुका है वो हो चुका हुआ है। आप आपस में कशीदगी के साथ मज़ीद चीज़ों को ख़राब करेंगे, पॉइजन कर लेंगे, तो उसके लिए बेहतर ये है कि आप सल्यूशन कैसे करना है और क्या करना है उसकी तरफ आएँ। तो मैं भी चाहता हूँ कि हम उसकी तरफ आएँ, क्योंकि जो डैमेज है वो हो चुका हुआ है, एडिक्शन हो चुकी हुई है, चीज़ें लग चुकी हैं। तो सबसे पहली चीज़ ये है कि घरों के अंदर अपना एक टाइम टेबल जो है वो सेट कर लिया जाए किसी भी चीज़ के लिए। इस्लाम ने भी अपनी इबादत के लिए टाइम टेबल रखा है। रमज़ान साल बाद एक दफ़ा ही आता है, नमाजें 5 हैं तो 6 नहीं पढ़ सकता, 4 नहीं पढ़ सकता, तो वो 5 है और 5 का अपना वक्त है। इसी तरह हज का एक मौसम है और वो उसी मौसम में होगा। और बिल्कुल ये सारी चीज़ें एक टाइम, दिन भी एक टाइम पे तुलू होता है और गुरूब भी एक टाइम पे होता है। तो इस चीज़ों से हमें ये सीखना है कि एक टाइम टेबल की अहमियत बहरहाल है। तो अपना टाइम टेबल जो है उस हिसाब से सेट करना चाहिए और लोगों को, अपने बच्चों को अपने वक्त की जो कदर है वो बतानी चाहिए कि वक्त किसी के लिए नहीं रुकता है। आपने पॉजिटिव करना है या नेगेटिव करना है, ये जो वक्त एक दफ़ा गुजर गया, आप जो मर्जी कर लें, कायनात के सारे वसाइल लगा दें, वो सेकंड, वो मिनट, वो घंटे जो गुजर गए हैं वो वापस आप नहीं ला सकते अपनी ज़िंदगी के अंदर। तो जो अपॉर्चुनिटी है वो हर रोज़ आपके पास है, हर मिनट में आपके पास है, हर सेकंड में आपके पास है। तो आपने कैसे अवेल करनी है, इस चीज़ के ऊपर फोकस किया जाए और फिर बच्चे को समझाया जाए कि भाई तेरे लिए तेरी दुनिया भी अहम है। हम ये नहीं कहते कि इस्लाम ये कहता है कि दुनिया छोड़ दी जाए और रहबानियत इख्तियार कर ली जाए और बिल्कुल वो एक जगह पे बंद होकर बैठ जाए और सोचा जाए कि जो अल्लाह ने मुकद्दर में लिखा वो आएगा। नहीं, कोशिश करना अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान के लिए रखा है। और सूरह नजम के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ये बात इरशाद फरमाता है, वलैसा लिल इंसानि इल्ला मा सआ। और ये मैं समझता हूँ दुनिया आखिरत दोनों के लिए है कि इंसान के लिए अल्लाह ने वही कुछ रखा है जिसकी वो कोशिश करता है। एफर्टलेस बंदा कुछ भी नहीं कर सकता। ठीक है। अपनी जिंदगी के अंदर एफर्ट को माइनस नहीं कीजिए, अपनी पॉजिटिविटी को माइनस नहीं कीजिए। जो आज अचीव नहीं हुआ वो कल हो जाएगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। आपका बच्चा आज पास नहीं हुआ, कल हो जाएगा। बस ये सोचिए आखिरत का जो इम्तिहान है उसमें सेकंड अटेम्प्ट नहीं है, उसमें सप्ली का चांस नहीं है। ठीक है। उसमें वापसी आके फिर नए कमल करके फिर वापस नहीं जाया जाएगा, बस एक ही दफा है। जब एक दफा ये बात है तो फिर उसके लिए आप दोनों वालिदैन हैं, उनसे बड़े दादा दादी हैं, नाना नानी हैं, जो भी खैर खाई करना चाहता है, अब वो ब्लेम गेम से बाहर निकल आए और वो बच्चे के साथ बैठे और उससे के ठीक है, यकदम चीजें नहीं छूटती, नहीं खत्म होंगी, ग्रेजुअली होगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी शराब खून में रची बसी थी सहाबा के, ईमान के स्टार्ट पे उसे हराम नहीं किया, वो ग्रेजुअली हुआ। उसकी पहले उसके नुकसानात बताए गए, उसके मुज़र असरात बताए गए, बॉडी के ऊपर भी या अकल के ऊपर भी, रूहानियत के ऊपर भी। फिर इस एक वक्त आया कि उसके बाद कहा कि अब नहीं, और उस ग्रेजुअली जो तरबियत की थी उसका इम्पैक्ट ये आ रहा था कि जिसके मुंह के अंदर थी, साहबा कहते हैं जो पी रहे थे जिसके मुंह के अंदर थी, उसने मुंह के अंदर वो ये नहीं सोचा कि अब
یہ تو منہ کی کیوٹی کے اندر ہے تو اس کو میں انگلف کر لیتا ہوں, میں اندر لے جاتا ہوں, تو اس نے وہیں سے اسے پھینک دیا باہر, کولی کر دی. جام بھرے ہوئے تو یہ نہیں تھا کہ اب بھر لیا تو اب پی لیتا ہوں, نہیں, گرا دیا. اب آپ نے جب تربیت کرنی ہے تو تربیت کے پرنسپل آپ لے لیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. ہم جب کہتے ہیں ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے, دل کا قرار ہے, ہماری روح کا سکون ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, تو پھر ہمیں ان سے یہ چیزیں لیتے ہوئے شرم کیوں آتی ہے؟ ہمیں کیا ہیزیٹیشن ہے وہاں لیتے ہوئے؟ جب ہمیں کوئی ہیزیٹیشن نہیں ہے اور ہمارے دنیا آخرت کے امام وہ ہیں, ہمارے دنیا و آخرت کے آقا و مولا وہ ہیں, تو پھر ہمیں مسئلہ کیا ہے بھائی وہاں سے لینے میں؟ آپ لیں, جو ہو گیا کوئی مسئلہ نہیں ہے. توبہ بھی یہی ہے کہ جو ہو گیا کوئی مسئلہ نہیں, آپ پلٹیں, آپ واپس آئیں, آپ ریوائیو کریں, آپ اپنی زندگی کے اندر پازیٹیوٹی لے آئیں. اب اس کی مثال یوں سمجھ لیں, ایک گلاس ہے, اس کے اندر آپ نے پانی بھرا ہے, پانی کے اندر آپ کوئی بھی انک ڈال دیں. اب ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ اسے پھینکیں, دھوئیں, پھر نئے سرے سے آپ اس کے اندر جو بھی چیز انپٹ کرنا چاہتے ہیں وہ کیجئے. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ اسے اپنے نل کے نیچے رکھ دیں, اس کے اوپر پانی ڈالنا شروع کر دیں, ایک جگ لے لیں, جگ سے گلاس کے اندر پانی ڈالنا شروع کر دیں. ایک وقت آئے گا کہ وہ آہستہ آہستہ اوور فلو کی وجہ سے وہ بہہ جائے گا, گندا تھا وہ نکل جائے گا, صاف رہ جائے گا. تو ہم یہ تو نہیں کر سکتے کہ بچے کو ماریں گے, ڈانٹیں گے, ڈپٹیں گے, گھر سے نکال دیں گے, اس کی جان لینے کے دشمن بن جائیں گے, تو یہ تو اسلام کے اندر ہے بھی نہیں. اب یہاں پہ پھر یہ ہے کہ آپ نے بالکل اس جگ کی طرح اس کے اندر آہستہ آہستہ پازیٹیوٹی انڈیلنی ہے, جس سے وہ نیگیٹیوٹی ریموو ہو جائے گی اور وہ ایک صاف ستھرا بچہ بن جائے گا. اس کے لیے چیک اینڈ بیلنس رکھنا ہے, اس کی ہیبٹس پہ, اس کی ٹائم پہ, وہ جو سرچ کر رہا ہے اس کی سچ بات پہ نظر رکھنی ہے. پھر گھروں کی ٹائمنگ اس طرح سے ہو کہ آپ گھر میں بچوں سے 9 بجے کا رکھ لیں, 10 بجے کا رکھ لیں, آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ جتنا بھی سکرین ٹائم آپ نے انہیں دینا ہے وہ بتائیں. اس کے بعد اپنے سارے گیجٹس کلیکٹ کریں, لاکر میں رکھیں, اور تاکہ سب کو کہیں بھائی اب سو جاؤ, گھر کے سارے الیکٹرانکس گیجٹس بند کر دیا جائے. ٹائم بنا دیں کہ اس ٹائم پہ آپ کو ملے گا اور اس ٹائم کو آپ سے لے لیا جائے گا. جی, آپ کے اسکول کا یہ ٹائم ہے, آپ کے گپ شپ کا یہ ٹائم ہے, آپ کے کھیلنے کا یہ ٹائم ہے, ہوم ورک کرنے کا یہ ٹائم ہے, قرآن پڑھنے کا یہ ٹائم ہے, دینیات سیکھنے کا یہ ٹائم ہے, اخلاقیات سیکھنے کا یہ ٹائم ہے, آپ نے جو انٹرٹینمنٹ کرنا ہے اس کا یہ ٹائم ہے. اب مسئلہ یہ ہے ہم نے انٹرٹینمنٹ انلمیٹڈ کر دی ہے, ٹائم لیس کر دی ہوئی ہے. اس کا نتیجہ یہ ہے, مجھے معذرت کے ساتھ میں لفظ بولنا چاہتا ہوں, شاید گراں گزرے گا, لیکن تماشبین قوم بنا دی ہم نے. اب جب تماشبین قوم بنا دیا ہے تو جہاں جہاں تماشا ہوتا ہے سوشل میڈیا پہ آپ کو ملین نہیں بلین ویوز دیکھنے کو ملتے ہیں, اور جہاں پہ اچھی بات ہوتی ہے وہاں پہ سکرول کر کے چند سیکنڈ کے اوپر نکل جایا جاتا ہے. کتابوں کے ساتھ بھی یہی ہو رہا ہے, اچھی باتوں کے ساتھ بھی یہی ہو رہا ہے, اچھی اخلاقیات کے ساتھ بھی یہی ہو رہا ہے, لیکن یہ اسی بے حسی کا نتیجہ ہے, یہ اسی جو ٹائم مینجمنٹ نہ کرنا ہے اس کا نتیجہ ہے, جو ہماری ویلیوز ہیں اس کے اوپر گرپ نہ رکھنے کا نتیجہ ہے کہ ساری قوم تماشبین ہو گئی ہے, چاہے وہ سفید داڑھیوں والے بابے ہیں, چاہے وہ 9-10 سال کے اپنی ٹین ایجر سٹارٹ کرتے ہوئے بچے ہیں. وہ ٹوٹل سوسائٹی کا یہ امپیکٹ آ گیا ہے کہ بھائی یہ قوم کچھ نہیں کرے گی, اس کو تماشا دکھاؤ, تماشا اس کے سامنے کرو, یہ اس کے سامنے ٹک کے بیٹھی ہے, اسے کوئی پتہ نہیں ہے. وہ انگریز بھی یہی کہہ گیا تھا کہ میں نے وہ پھاٹک پہ دیکھا ریلوے کراسنگ کے اوپر کہ وہ اپنی سائیکل اٹھا کے کندھوں کے اوپر بھاگ کے جا رہا ہے, آگے جا کے دیکھا وہ ایک مداری وہاں پہ جناب تماشا لگا رہا ہے. اور یہ جو کہتا میں سوچ رہا تھا کہ پتہ نہیں کس طرح کی جلدی ہے کہ اپنی زندگی رسک میں ڈال کے یہ ٹریفک مطلب ریلوے کراسنگ کو کراس کر رہا ہے, ٹرین آ رہی ہے تو یہ جا رہا ہے لیکن آگے وہ مداری کے پاس بیٹھا تماشا دیکھ رہا ہے. تو یہ تماشے سے باہر نکلنا ہے, اور اس میں پیرنٹس کو, ٹیچرز کو, ہمارے جو انٹلیکچوئل ماہرین جسے ہم سمجھتے ہیں ان کو, ہم جنہیں آئیڈلائز کرتے ہیں, چاہے وہ شوبز کی دنیا سے تعلق رکھتے ہوں یا چاہے انٹرٹینمنٹ انڈسٹری کے ہیں, میڈیا انڈسٹری کے ہیں, یا سب کی ذمہ داری ہے, بے شک, اور یہ اوپر سے نیچے تک سب کے پاس. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ, تم میں سے ہر بندہ ذمہ دار ہے اور اللہ اس سے اس کی ذمہ داری سے متعلق سوال کرے گا. گھر کا جو ذمہ دار ہے اس سے اس کے گھر کے متعلق سوال کرے گا, اسٹیٹ کا جو ذمہ دار ہے اس سے اسی اسٹیٹ کے متعلق سوال کیا جائے گا, جو اپنے جسم کا ذمہ دار ہے اس سے اسی کی باڈی کے متعلق سوال کیا جائے گا. اب یہاں پہ یہ بات بڑی کلیئر ہوتی ہے کہ بھائی من مرضی نہیں ہے, میں آزاد نہیں ہوں, اسلام قبول کرتا ہوں تو ایک غلامی کے دائرے کے اندر آتا ہوں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات اس حوالے سے کہی تھی جو ہم کہتے ہیں نا میری مرضی ہے, میرا بچہ ہے, میں کروں, میرے گھر کے معاملات ہیں, میری ویلیوز ہیں. بھائی آپ کو کیا لگتا ہے, آپ اپنے گھر میں ڈونٹ انٹرفیئر ان مائی ہاؤس, اپنے سگے بھائیوں سے, بہنوں سے ہم یہ کہہ رہے ہوتے ہیں, تو بھائی اس کا مسئلہ کیا ہے؟
नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया दुनिया सिजनत मोमिन, दुनिया मोमिन के लिए एक कैद खाना है। कैदी की अपनी मर्जी नहीं, उठने की, सोने की, जागने की, खाने की, पीने की अपनी मर्जी से नहीं कर सकता। वह जन्नत काफिर, काफिर के लिए जन्नत है। काफिर जो मर्जी खाए पिए, जहां मर्जी सोए, जैसे मर्जी सोए, जैसे मर्जी उठे। आजकल शुगल में हम ये कह रहे हैं कि इंसान की जिंदगी ना शेर की तरह होनी चाहिए, ना टूथब्रश करने की जरूरत पड़े, ना जामूद होने की जरूरत पड़े, ना जहां जी चाहा उस पर झपटा मारा, उसे अपनी खुराक बनाया, अपनी जरूरत पूरी की और निकल गया। तो बिल्कुल ये नहीं, अल्लाह ने मुसलमान को इसलिए बिल्कुल नहीं बनाया। बहुत खूबसूरत बात की है। यहाँ मैं आपसे एक और बात यहाँ पूछूंगी कि जो तालीमात हैं वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात हैं, बच्चों के साथ हुस्न सलूक और मोहब्बत के हवाले से रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या उनकी तरगीब थी? कौन से वाक़यात ऐसे मिलते हैं जो कि कुरान मजीद में हैं? हदीस में भी है, कुरान मजीद में भी है। डॉक्टर साहब, लेकिन हम ये इस सवाल का जवाब आपसे लेंगे। हमें आई थिंक ब्रेक का पैगाम आया, हम ब्रेक पे जाते हैं और ब्रेक के बाद वापस आएंगे। हमारे बहुत इंपॉर्टेंट एक मामला डिस्कस कर रहे हैं। आप लोग देख रहे हैं पैगाम रमज़ान। पैगाम रमज़ान में आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहते हैं। कश्मीर के किचन में हमारी कौन सी रेसिपी तैयार है हम आपको बताते हैं। जी फातिमा, आज क्या बना रही हैं? वालेकुम सलाम। आज हम जो है ना वो बड़ा एक ट्रेडिशनल सा मेन कोर्स बना रहे हैं, जिसके बगैर जो है ना वो हमारे घर की दावत जो है वो नामुमकिन होती है। क्योंकि ईद आ रही है तो हम जो है ना रोज़ों के साथ साथ आप इफ्तार में भी बना सकते हैं, लेकिन ईद की स्पेशल ठीक है। और इसको जो है ना कहते हैं कढ़ाई गोश्त, अचारी गोश्त, सॉरी कढ़ाई, हाँ देख बिल्कुल अचारी, इसकी स्मेल जो है और इसकी जो फ्रेग्रेंस है वो बिल्कुल अचार की आ रही है। बिल्कुल अचार के मसाले के साथ ये बनता है बेसिकली ना। जैसे हम अचार का मसाला बनाते हैं सेपरेटली और उसके साथ अचार को जो है ना वो मतलब तकरीबन 6 महीने तक या साल तक यूज कर सकते हैं। इसका मसाला भी हम बना के जो है ना इसी तरह स्पेशल बनाते हैं। ठीक है। तो जो है ना इसके लिए हमने लिया है सबरोसो का कढ़ाई कट। बेसिकली वो मेरे माइंड में चल रहा था तो इसलिए जो है ना वो मेरे स्लिप ऑफ टंग हो गया। कढ़ाई कट आप लेंगे सबरोसो का, और जो है ना उसके साथ इंग्रेडिएंट्स इसके हैं 250 ग्राम इसमें हमने ऐड किया है अनियन, 250 ग्राम इसमें गया है टमाटो, 1 टेबल स्पून ऑफ जिंजर गार्लिक पेस्ट, जिंजर गार्लिक पाउडर भी आप ऐड कर सकते हैं। और इसके अंदर जो अचार का मसाला जा रहा है उसमें है राई दाना, मेथी दाना, सौंफ, और इन सारी चीज़ों को जो है ना आप करेंगे ग्राइंड, और ग्राइंड करके जो है ना इसमें आप ऐड करेंगे थोड़ा सा सरसों का तेल और थोड़ा सा अचार का तेल ऑलरेडी जो बना हुआ है, क्योंकि उसको थोड़ा सा टाइम लगता है ना बनने में, और उसका मसाला जो है वो, और टाटरी जो इसका मेन इंग्रेडिएंट होता है ताकि जो आपका जो खटास है ना वो बहुत अच्छी आती है। हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन उसके लिए जो है ना क्वांटिटीज का आपने ख्याल रखना है कि अगर ये मैं चिकन लिया है 1 kg चिकन है, उसके अंदर 250 ग्राम जा रहा है अनियन और टमाटो, साथ में 1 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक का पेस्ट, और इसके साथ 1 कप जो है इसमें ऐड किया है मैंने योगर्ट का। सारे मसाले को जो है ना हम ऐड करेंगे ऑयल, उसके अंदर जिंजर गार्लिक पेस्ट, और फिर जो है चिकन को उसके अंदर 4 से 5 मिनट के लिए भूनेंगे। जब चिकन का कलर चेंज होने लगेगा ना तब आपने बाकी प्याज और टमाटर का जो पेस्ट है वो ऐड करना है। उसके बाद तकरीबन 10-15 मिनट आप उसको भूनेंगे और ड्राई इंग्रेडिएंट्स पर आप सारे ऐड कर देंगे, और इसको जो है ना पकाना है हमने तकरीबन 15 से 20 मिनट तक स्लो फ्लेम पे। ठीक है। देखिए जब आप कोई भी चीज पका रहे होते हैं ना तो स्लो फ्लेम पे पकाने का मकसद होता है उसके टेस्ट को इनहेंस करना। जब हम तेज आग पे कोई भी चीज पका लेते हैं ना तो वो क्या होता है कि फौरन से पक तो जाती है, लेकिन उसका जो एक तो न्यूट्रिशन हेल्थ उसकी खराब होती है और दूसरा उसका टेस्ट है उसमें बहुत डिफरेंट जो है ना वो हो जाता है। वो अच्छा, स्लो लोगों को देखा है कि हरी मिर्चें भर के भी डालते हैं। बिल्कुल, मैं भी डालूंगी। हाँ जी, मैंने उसका भी बताएं कि वो कैसे डाली जाती है, उसका मसाला कैसे भरा जाता है, क्योंकि अचारी गोश्त या अचारी चिकन जो है वो मुकम्मल नहीं होता जब तक उसके मिर्च ना हो। मिर्च का जो मसाला है ना वो जैसा मैंने आपको बताया कि अचार का मसाला बेसिकली हम बनाते हैं सेपरेटली, जिसमें आप लेंगे 1/2 कप राई दाना, 1/2 कप मेथी दाना, 1/2 कप सौंफ, और उसके साथ 1 टीस्पून आप लेंगे टाटरी का, और उसके साथ 1 टेबल स्पून आप लेंगे चाट मसाले का। साथ में आप ऐड करेंगे 5 टेबल स्पून सरसों का ऑयल, और इस सारे मिक्सचर को आप बना के रख लेंगे। और मिर्च जो सादी मिर्च आपको होती है लेकिन आपने साइज में थोड़ी सी बड़ी रखनी है, और उसको
स्कूप करना है, बिल्कुल ठीक है। इसको जो है वो हम कट करेंगे मिड से, और इसके आपने जो सीड्स हैं, बीज हैं, वो रिमूव कर देंगे आप, और उसके बाद जो है ना इसमें आप मसाला फिल अप करते हैं, लेकिन उसको जो है ना पकाना नहीं है आपने। जैसे आपका चिकन 15 मिनट 20 मिनट में रेडी हो गया, घी ऊपर आ गया, उसके बाद फिर आपने क्या करना है कि जब आप दम रखने लगेंगे ना, फिर आपने उसको सिर्फ सिंपली थोड़ा सा रखना है दम पे, पकाएंगे नहीं उसको, ठीक है, क्योंकि फ्राई नहीं करनी है, उसके अंदर भी कुक नहीं करनी, सिर्फ दम के अंदर जो हम 10 से 12 मिनट के लिए रखते हैं, सिर्फ उसको हम वो रखेंगे, ठीक है। और इसके साथ है ना आज जो है ना वो किचन की मैं आपको एक टिप देती हूँ। टाइम कंज्यूम बहुत ज़्यादा होता है जब हमारा किचन में हम काम कर रहे होते हैं, हमारे घर में जब लेडीज़ हैं, जो नई बच्चियाँ काम कर रही होती हैं ना, तो उनके लिए ये है कि जब आप जिंजर गार्लिक जो है वो आप फाइन चॉप करें, या फिर आप उसका पेस्ट बनाएं और आप उसको जो है ना वो फ्रीज कर लें। उसके बाद आप लहसुन को भी, प्याज को भी इसी तरह से वो ग्राइंड करेंगे और आप उसको क्यूब्स बना के रख लेंगे। हर चीज के आप क्यूब्स बना के जब रखते हैं ना, आप किचन में गए, एक एक क्यूब आपने निकाला, फौरन से सारी चीज रेडी कर ली। अच्छा, एक और टिप जो मैं भी आपको दूं कि जो मैं किचन में जाती हूँ तो मेरी क्या है कि आपने लहसुन को पहले भिगो देना है पानी में, वो आसानी होती है उसका छिलका उतारने में। बिल्कुल, ये ठीक है, अक्सर लोगों के नेल्स बेचारियों के वो सारे मैसअप हो जाते हैं क्योंकि वो छिलका उतरता नहीं है। तो बेस्ट चीज जो है पानी में हमेशा लहसुन को पहले भिगो दो घंटा, और उसके बाद आप आराम से उतार लोगी, वो चिप ऑफ हो जाएंगे। परफेक्ट। एक ये भी बहुत बेहतरीन तरीका है। दूसरा जो शेफ्स प्रोफेशनली किचन में यूज करते हैं वो ये कि पूरा, क्योंकि हमारे पास होते हैं ये जो है ना वो नाइफ, बुचर नाइफ होती है, इसको जो है ना वो हम सिंपली पूरा जो वो रखते हैं लहसुन, और ऊपर से जो है ना इसको स्टक ऑफ कर दें, तो वो ऑटोमेटिकली सारे रिमूव हो जाते हैं, वो भी रिमूव हो जाते हैं। ठीक है, तो लेकिन ये इस्तेमाल करना भी आसान नहीं है ना, ये हर मैंने कहा प्रोफेशनली इस्तेमाल नहीं कर सकता, लेकिन आपने जो बताया वो आम हर घर में जो है ना वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं उसके लिए। अचार गोश्त के साथ आज हमें इसके साथ क्या देंगे? इसके साथ नान। यस, आप वैसे तो क्योंकि जो है ना हमारे यहाँ पे पाकिस्तानी ज्यादातर जो लोग हैं वो राइस लवर्स होते हैं, तो हर चीज के साथ बॉइल्ड राइस, दे लव टू ईट राइस, तो आप इसके साथ बॉइल्ड राइस भी खा सकते हैं। ग्रेवीज की बहुत मतलब लाइट सी बनती है, लेकिन ज्यादातर जो है ना ये नान के साथ या रोटी के साथ जाता है। फातिमा, बड़ी जबरदस्त किस्म की डिश बना रही हैं आप, और अचारी गोश्त बनाना आसान काम नहीं है, मगर आप जो बना रही हैं हम लोग जरूर इसको इफ्तार की टेबल पे दिखाएंगे, सजाएंगे भी, और फिर जो व्यूअर्स भी इसकी जो तरकीब उनको घर में इस्तेमाल करके बताएंगे उनको कैसा लगा। तो मेहमानों का सिलसिला हमारे अभी सेट पे जारी है, और हम बात करेंगे बिल्कुल हमारे साथ जो मेहमान ख़ास हैं वो हैं शेख रोहेल साहब हैं, जिनका सकून के नाम से ब्रांड है, एंटरप्रेन्योर हैं। उन्होंने ब्रांड कैसे प्रमोट किया, ब्रांड को कैसे लेके चल रहे हैं, ई कॉमर्स में उनका क्या रोल है, तो सबसे पहले हम उनको वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूं, आप ठीक हैं? सर, सकून जो है इतना इमोशनल बिजनेस, सकून इतना बड़ा एक इमोशन है, और आपने इसको बिजनेस में कन्वर्ट कर दिया, तो ये इमोशनल बिजनेस कैसे आप लेके आगे चल रहे हैं? आपने बिल्कुल सही वर्ड यूज़ किया, जो इमोशनल। मैं हमेशा ये बात करता होता हूँ कि सुकून एक इमोशन का नाम है। और देखें इमोशन किस तरह से है कि आपकी फैमिली में आपके मदर को, आपके फादर को कोई डेली लाइफ रूटीन के अंदर, आप फर्ज करें लेट्स सपोज उनके घुटनों में दर्द है, वो बहुत डिस्टर्ब है उनकी लाइफ रूटीन, और हम क्या करते हैं, हम जस्ट आपको कहते हैं कि आप कोई टेबलेट ना खाएं, कोई दवाई ना खाएं, एक ऑयल आपने मसाज करना है और आपका पेन विद इन मिनट्स चला जाता है। अब जो इमोशन दर्द का है वो चला गया, और जो इमोशन सेटिस्फेक्शन का है, हैप्पीनेस का है, वो आ गया। ये बिल्कुल इमोशंस की सारी गेम है। हमने 2022 के एंड पे और 2023 के स्टार्ट में हमने इसको इनिशिएट किया था पाकिस्तान में। हमने कहा कि यार पाकिस्तान के अंदर इतनी मेडिकेशन के ऊपर काम हो रहा है, क्योंकि लोगों को क्यों ना हम लोगों को नेचर की तरफ वापस लेके आए, बैक टू नेचर। कितना मुश्किल है, कोई भी आप जब टेबलेट लेते हैं वो आपकी पूरी बॉडी के अंदर से इंटरेक्ट करती है, सारे मेन ऑर्गन्स को इंटरेक्ट करती है। तो कोई भी ऑर्गन, गैस्ट्रिक इरिटेशन सबसे बड़ा रीजन यही है कि आप मल्टीपल दवाइयाँ लेते हैं जिसकी वजह से आपकी गैस्ट्रिक इरिटेशन। फिर एक्सटर्नल यूज की चीजें हमें डर भी नहीं लगता, आपको कोई साइड इफेक्ट की टेंशन नहीं है, आपको कोई डर नहीं लगता। आपको मैक्सिमम साइड इफेक्ट होगा, एलर्जी रिएक्शन हो जाए किसी इंग्रेडिएंट से, तो पैच टेस्ट आप करके देखें, उसके बाद आप इम्प्लीमेंट करें। अच्छा, मार्केट में बहुत किस्म के ऑयल्स आ गए हैं, कोल्ड कंप्रेस ऑयल्स, कोल्ड ऑयल्स, लेवेंडर, हर तरह के तेल हैं। तो आपका तेल जो है, जो सकून, जो आपका ऑयल है, वो मुनफरिद कैसे है बाकियों से, और उसमें क्या ऐसी ख़ास बात है? हाँ बिल्कुल, ये जानना बहुत ज़रूरी है। मैं इसको थोड़ा सा मेंशन करूँगा। ये इसेंशियल ऑयल्स का ब्लेंड है। अच्छा,
یہ سنگل آئل نہیں ہے, یہ ایسینشل آئلس کا بلینڈ ہے, اور یہ 15 انڈیکیشنز آپ کی باڈی میں مختلف جو سر سے لے کر پاؤں تک مسئلے مسائل ہیں ان کو ایڈریس کرنے کے لیے ڈیفرنٹ آئلز بنائے گئے ہیں. ٹھیک ہے. آپ کے پیرنٹس کو, آپ کے بڑوں کو ڈائبیٹک نیوروپیتھی ہے, ہاتھ پاؤں میں سوئیاں چبھتی ہیں, آپ کو جس ہمارا جو پروڈکٹ ہے نا وہ آپ کو مساج کرنا ہے تو وہ ریلیکس فیل کرتے ہیں. ڈائبیٹک نیوروپیتھی بہت بڑا مسئلہ ہے, سوئیاں چبھنا, ساری ساری رات نیند نہیں آتی, ساری ساری رات اریٹیشن رہتی ہے. پھر جوائنٹس پین کا میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں. میگرین آپ کو پتا ہے کہ بہت بڑا ایشو ہے, بہت بڑا ایشو ہے. صرف مساج کریں گے اسینشل آئل بلینڈ کو تو آپ کو ریلیکس ہوگا. نیند نہیں آپ لے پاتے اینزائٹی کی وجہ سے یا ورک لوڈ اسٹریس کی وجہ سے, تو ہم جسٹ آپ کو کہتے ہیں کہ آپ مساج کریں آپ ود ان منٹس آپ اچھی نیند میں چلے جاتے ہیں. تو ملٹیپل چیزیں ہیں. ابھی ونٹر گزر کے گیا ہے, ونٹر کے اندر ہم نے یہ ایڈریس کیا کہ مارکیٹ کے اندر ایک بڑی پرابلم آ رہی ہے آڈینس کے اندر, ہماری جو سوسائٹی ہے, سورائسس کا بہت بڑا ایشو ہے, چمبل, جو کہ آٹو امیون ڈیزیز ہے جس کا علاج بھی نہیں ہے. تو ہم نے ایک پروڈکٹ انٹروڈیوس کرایا پھر اس کے لیے, اس کا نام سورائسٹ ہے. تو وہ ہمیں اتنے میسیو ریزلٹس ملے. دیکھیں دو چیزیں ہیں جو میں ہمیشہ مینشن کرتا ہوں کہ سے نو ٹو میڈیکیشن. آپ میڈیکیشن سے پہلے ٹرائی کریں, دیکھیں ٹرائی کرنے میں کیا حرج ہے, آپ کو کوئی سائیڈ افیکٹ تو نہیں آ رہا. اور اس کے بعد میں آپ کو یہ لازمی کہتا ہوتا ہوں کہ نیچر کی طرف واپس آئیں. جو ہمارے بزرگ 5000 سال پہلے یا میرے آپ کے بڑے بھی جو علاج کرتے تھے, آپ اس کی طرف واپس آئیں. اسینشل آئلس کیا ہوتے ہیں؟ اسینشل آئلس کے اندر ہم ہربز اینڈ سیڈز کا آئل نکالتے ہیں. سم ٹائم وہ کولڈ پریس ہوتا ہے, جیسے آپ نے بتایا کولڈ پریس ہوتا ہے. سم ٹائم وہ ڈسٹلیشن کے پروسیس سے نکلتا ہے, جیسے ارکے گلاب کی بھی آپ بات کریں تو وہ ڈسٹلیشن کا ایک پروسیس ہے. ملٹیپل اسینشل آئلس ہیں. میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ 132 اسینشل آئلس ہیں جن کی مدد سے ہم یہ 15 پروڈکٹس بناتے ہیں. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. سر آپ کے جو آئل کے اوپر ایک ٹیگ ہے حلال کا, جی بالکل, وہ بھی ٹیگ لگا ہوا ہے, ہم اس کے بارے میں بات کریں گے. اور شریعت میں یہ کتنا کہتے ہیں آپس میں اکٹھے ہیں. لیکن بریک کے بعد واپس آتے ہیں, ہمیں بریک پہ جانا ہے. آپ دیکھ رہے ہیں پیغام رمضان. پیغام رمضان میں آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں. آج ہمارے سیٹ پہ روزہ کشائی اور بڑے پیارے پیارے بچے آج ہمارے سیٹ پہ آج موجود ہیں. ان سے پوچھتے ہیں, پہلے ان کا نام پوچھیں گے پھر ان سے کچھ سنوں گے. کیا نام ہے؟ کنیز فاطمہ. آپ کا کیا نام ہے؟ مالک اشتر. مالک اشتر. اور آپ کا کیا نام ہے؟ نور الہدا. نور الہدا. آپ کا؟ آپ کا؟ اسرا. اچھا مجھے بتاؤ, مجھے نعت کون سنائے گا؟ چلو. یا محمد محمد میں کہتا رہا, یا محمد محمد میں کہتا رہا, نور کے موتیوں کی لڑی بن گئی, آیتوں سے ملاتا رہا, آیتوں سے ملاتا رہا, آیتیں پھر جو دیکھا تو نعت نبی بن گئی. یا محمد محمد میں کہتا رہا, نور کے موتیوں کی لڑی بن گئی. جو بھی آنسو بہے میرے محبوب کے, سب کے سب ابر رحمت کے چھینتے بنے. جو بھی آنسو بہے میرے محبوب کے, سب کے سب ابر رحمت کے چھینتے بنے. چھا گئی رات جب زلف لہرا گئی, چھا گئی رات جب زلف لہرا گئی, جب تو بسم کیا چاندنی بن گئی. یا محمد محمد میں کہتا رہا, نور کے موتیوں کی لڑی بن گئی. ماشاءاللہ. جب چھرا تذکرہ حسن محبوب کا, جب چھرا تذکرہ حسن محبوب کا, والضحیٰ کہہ دیا والقمر پڑھ لیا, آیتوں کی تلاوت
भी होती रही। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो बहुत प्यारा पढ़ा है। अभी हम नात भी बन, माशाल्लाह माशाल्लाह, मेरे बेटे ने बहुत प्यारा पढ़ा है और बहुत अच्छा पढ़ा। वेल डन, वेल डन। अब मैं फातिमा की रुख करूंगी। फातिमा, दस्तरखान आपने लगा दिया है और आपके पास अब किचन में अब क्या है? हाँ जी, मेरे पास किचन में एक रीकैप रेसिपी है जो कि अभी तक मैंने नहीं दी, और साथ में हमने जो है वो रूह अफ़ज़ा का भी ड्रिंक बना के रख दिया है। रूह अफ़ज़ा के लिए मैंने लिया है 1 कप मिल्क। आप कोकोनट मिल्क भी ले सकते हैं, पिस्ताचियो मिल्क भी ले सकते हैं। उसमें मैंने ऐड किए हैं 2 ड्रॉप्स वनीला एसेंस के, और उसके साथ जो है ना वो रूह अफ़ज़ा आप रूह सब्ज़ भी ऐड कर सकते हैं, और जो रूह अफ़ज़ा रेड वाला है वो भी कर सकते हैं। और उसके साथ साथ जो है वो अचार गोश्त बनाया था हमने, उसकी एक क्विक सी रेसिपी बता देती हूँ। 1 किलो चिकन लिया हमने, उसके साथ 1 पाव टमाटर, 1 पाव प्याज, 1 चम्मच जो है वो लहसुन अदरक का पेस्ट। अचार के मसाले के लिए हमने दिया है 1 टेबल स्पून राई दाना, 1 टेबल स्पून मेथी दाना, 1 टेबल स्पून जो है वो सौंफ। इन सारी चीज़ों को आपने पाउडर कर लेना है हल्का सा। उसमें आप डालेंगे 4 से 5 चम्मच जो है वो उसके सरसों के ऑयल के, और उसके साथ आप 1 टीस्पून टाटरी ऐड करेंगे, 1 टेबल स्पून चाट मसाला। इस मसाले को आपने भर के जो है ना वो मिर्च में भरना है, और उसके बाद जो है ना वो आपने ऑयल में लहसुन अदरक का पेस्ट। डिश आउट हो चुकी हुई है और दस्तरखान लग चुका हुआ है। अब अफ्तार का वक्त भी करे आ रहा है, तो उसके बाद हम बताएंगे। और बच्चे जो हैं आज रोज़ा कुशाई के लिए हमारे आज सेट पर हैं और हमारे साथ रोज़ा खोलेंगे आज। सबके माशाल्लाह छोटे छोटे प्यारे प्यारे, किसी का चिड़ी रोज़ा है, किसी का प्रॉपर रोज़ा है, और इन सब को आज मिलेंगे रूह अफ़ज़ा के गिफ्ट हैम्पर्स। और उसके बाद मैं आपको बताती चलूँ कि रहीम स्टोर लेकर आया है बहुत ज़बरदस्त किस्म की ऑफर्स। आप डिस्काउंट ऑफर्स अवेल कर सकते हैं, दोनों ब्रांचेस में चले जाएं और वहाँ आप जाके शॉपिंग करें और कुरंदाजी में कहते हैं अपना पार्ट लें। कुरंदाजी के ज़रिए आप जीत सकते हैं ढेरों किस्म के इनामात। और मैं शुक्रिया अदा करूँगी अपने गेस्ट्स का, जिसमें डॉक्टर सलाउद्दीन मजहबी स्कॉलर हैं जिन्होंने आज हमें बहुत ज़बरदस्त किस्म की बातें बताई। उन्होंने हमारी रहनुमाई की बच्चों के हवाले से, बच्चों की तरबियत के हवाले से। और शेख रुहेल साहब CEO हैं सकून, उनका बिज़नेस है और उनके ऑयल्स के साथ मुस्तफ़ीद हो सकते हैं बड़े भी जिनको एंजाइटी इश्यूज़ हैं। उन्होंने भी बताया कि अपने बिज़नेस को वो कैसे आगे लेके चल रहे हैं। तो व्यूअर्स, प्रोग्राम का जो वक्त है वो ख़त्म हो रहा है और हमारे आज सेट पे रोज़ा कुशाई भी है। तो फिर मिलेंगे कल और एक नए प्रोग्राम के साथ। तो तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।